Hello all, I welcome you to the ninth lecture of this welding process. My name is Divyanshu Pandey. I've done my master's from IIT Kanpur. I'm having 3 years of teaching experience and currently working under Techie project as an assistant professor in Engineering College Jhalawar. In this welding process series, we have covered 8 lectures till now, and in those lectures, we have seen the introduction of welding, different kind of joints, which we do in welding operations, different kind of power sources which we use in welding operations, and the characteristic of power sources. So now we have seen the all the parameters and all the concepts which are essential to know the different welding operations. So now I'm going to start with different kind of welding operations which we use in industries for performing welding operations. So first of all, we will start with shielded metal arc welding. So basically, shielded metal arc welding is the most common kind of welding process which we use. और जो हम वर्कशॉप में वेल्डिंग ऑपरेशन करते थे जो स्टिक वेल्डिंग होती थी वो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ही है. सो लेट्स स्टार्ट विद SMAW. So the American Welding Society defines SMAW as shielded metal arc welding और इसको कई जगह और बुक किताबों में आपको स्टिक वेल्डिंग और मैनुअल आर्क वेल्डिंग भी बोला जाएगा. ये चीपर होता है, इसका अरेंजमेंट काफ़ी आसान होता है. दैट्स वाई इसका इसका यूज़ जो है यूजेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. और आप इसको किसी भी शॉप पे यू कैन सी एंड यू आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट हैव डन welding operation by using this SMAW during your during your first year only. Okay, and this is a kind of fusion welding. So in fusion welding, what happens? Uh, जो melting happens. Fusion means क्या होता है? Melting ही होता है. तो इस welding में जो आग से जो heat produce होती है, that heat is used to melt down your electrode. एंड इलेक्ट्रोड में ही आपका जो फिलर मटेरियल होता है वो होता है, एंड फ्लक्स भी इलेक्ट्रोड में होता है जो कि हम डिटेल में आगे फर्दर स्लाइड में देखने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली द हीट जो यहाँ पे जरूरत होती है, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट डाउन योर इलेक्ट्रोड इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक आर्क. So first of all, let's start with the principle of process, how this SMAW works. So this is your schematic representation, or you can say that schematic diagram. So this is your electrode. Okay, the stick. This is also called stick, and the coating is done. The coating is done over the electrode, and that coating is of fluxes. And in between the coating portion, in between the coating portions, we have the electrode metallic part, and the spark is produced between the your workpiece and your electrode, and because of that spark the heat is generated, and this is your weld pool. After melting down, your electrode get melted and get there over your weld region and form weld pool. Okay, this is the shielding gases which is produced because of this coating, the flux coating, and this shielding gases helps to prevent the contamination and the reaction from the surrounding gases with your electrode and with your workpiece. So this shielding is very important. Okay, so all these things are mentioned here. Heat required for welding is obtained from the arc stuck between the coated electrode and the workpiece. This is known. And now the arc temperature, thus the arc, जो arc temperature है, heat है, that directly proportional to your current. So if you increase the current, the temperature will also increase. The high current arc with the smaller arc length produces a very intense heat. Okay, so if your arc length is small and the temperature current is high, then at that position the temperature will be very high, the heat will be very high. And we have seen that approximately 10,000 degree Fahrenheit जो temperature है वो यहाँ पे observe किया गया है experimentally. Okay, and because of this spark, metallic droplets are transformed from your electrode to job, and this happens because of the arc generation. And the flux coating also melts down and produces a gaseous seal or as well as the slag, and the density of this slag is less as compared to molten material. That's why the slag get there over the top surface of your molten pool, weld pool, and it prevent your molten pool to get
contaminated and get affected because of surrounding gases. So this is the principle of your SMAW. And again, this is a setup which we use for performing shielded metal arc welding operation. So this is your electrode holder, and we use a power source, basically a transformer in case of AC one. So this is your welding power source, and this is your table over which you want to perform a welding operation, and this is your electrode holder, and we just keep our stick between this electrode holder. Okay, so these are the different components of your shielded metal arc welding joint: electrode, workpiece, electrode holder, and all. Okay, so current flows through the electrode cable. Current flows through the electrode cable to the electrode holder through this cable, and the second port is connected with your table. And when we come this stick close to your workpiece, and when we touch this electrode to the workpiece, then current starts flow. And I have also mentioned the mechanism how this spark generated in the physics of arc. So in that way arc is generated, and because of arc, the melting of your electrode also starts. Okay, so in this, there is no need of separate filler rod, because the filler material is electrode only, and that electrode is covered by the flux with the help of by covered with flux. Okay, so this way, this is the arrangement of your SMAW. Now, in SMAW, we can use AC as well as DC power supply. And since it is a manual arc welding, so we use constant current power source because of manual arc welding. This is preferred in case of your shielded metal arc welding. Okay, and what is this constant current characteristic look like? So we have seen this part when we were studying about the different characteristic. Then we saw this drooping characteristic, right? This drooping characteristic. This is your voltage, and this is your current. Okay, so this was the curve for constant current, and this was also known as constant current. और इसमें क्या होता है कि for little change in for little change in voltage, the change in current is very less. So that's why जो melting rate है वो change नहीं होता है, and that's why this is preferred for manual arc welding. ये सारी चीजें physics में हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो go through करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Okay, now the different constituent of your SMAW process. So again, this is the repetition of the thing which I have shown in the previous slide. So यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है कि जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज योर इलेक्ट्रोड, और ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है, ये आपका जो कोटिंग कह सकते हो आप इसको, कोटिंग ऑफ फ्लक्स. ओके, एंड आर्क प्रोड्यूस्ड, और आपके ड्रॉपलेट फॉर्म्स में जो आपका मेटल है, मोल्टेन मेटल है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड towards the workpiece. Okay, and flux will also get melted, and after melting, it is called the slag. And slag is lighter in weight as compared to your molten metal. इसीलिए ऊपर यहाँ पे देखिए अधेर हो जाता है. ये ऊपर वाला सरफेस आपका स्लैग है, और ये प्रोटेक्ट करेगा सराउंडिंग गैसेस के रिएक्शन से. ओके, सो ये सारे पार्ट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है. सो दिस इज योर स्लैग, राइट. और सिर्फ अगर सीरियल वाइज देखें तो फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रोड, सेकंड नंबर आपका वेल्ड, जो आपका वेल्ड पर्डल है, वेल्ड रीजन जिसको आप कह रहे हो, एंड थर्ड नंबर इज योर आर्क, एंड आर्क हेल्प्स टू ट्रांसफर योर मोल्टेन मेटल ड्रॉपलेट टुवर्ड्स द वर्क पीस. और ये सील्डिंग गैस है जो कि फ्लक्स के बर्न आउट होने के बाद जो प्रोड्यूस होते हैं, तो बाहर के गैसेस को अंदर आने से रोकते हैं. एंड फिफ्थ वन इज सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल, एंड सिक्स वन इज स्लैग. Now it is very important to know the primary function of flux. In exams also, it has been asked that why do we use flux and what are the different properties a flux should have. तो ये हमें पता होना चाहिए. तो जैसे हमने देखा कि फ्लक्स बेसिकली वर्क्स एज अ सील्डिंग. तो फ्लक्स है वो बेसिकली सील्डिंग का काम करता है.
what happens when the temperature increases and when your electrode get melted, then at that point your electrode is very prone to get oxidized. Your metal is very prone to get oxidized, and at that point अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या फिर अदर आपके जो गैसेज है सराउंडिंग उनके कांटेक्ट में आता है, तो रिएक्ट करके ऑक्साइड के लेयर्स फॉर्मुलेट हो सकते हैं और जो कि हमारे लिए हार्मफुल होंगे, एंड दैट विल डिटोरिएट द प्रॉपर्टी ऑफ योर वेल्ड सरफेस. सो वो चीज़ हमें अवॉइड करना है. वो कैसे अवॉइड करें? तो सम हाउ हमें जो सराउंडिंग के गैसेज है उनको अंदर आने से रोकना होता है, एंड फॉर दैट ओनली वी यूज दिस फ्लक्सेज. और फ्लक्स बर्न होने के बाद स्लैग इन्फॉर्मेशन करते हैं जो कि सराउंडिंग गैसेस को अंदर आने से रोकते हैं. ठीक है. ओके. दूसरी चीज, स्लग के साथ साथ गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं. तो गैसेस टॉप पे होंगे. ओके. तो गैसेस टॉप पे होंगे और गैसेस का काम क्या होता है? गैस बेसिकली एयर सील्डिंग का काम करेगी जो कि गैस को अंदर नहीं आने देगी. उसके बाद गैस एनफ नहीं होता है, गैस इज नॉट एनफ टू फॉर प्रॉपर सीलिंग. तो इसके बाद स्लैग का रोल आता है. तो स्लैग क्या होता है? एक तरीके से ऊपर लेयर ही बना देता है आपके सरफेस के ऊपर. जो बेल्डिंग हो रही है उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. देखिए जैसे यहाँ पे एक तरीके से लेयर बन चुका है यहाँ पे. ठीक है. तो सील्डिंग गैसेस तो है ही आपके ये पूरा ऊपर वाले सरफेस पे. ठीक है. पूरे एरिया में सील्डिंग गैस कवर करा हुआ है. एंड अगेन इसके बाद भी अगर कुछ इंट्रैपमेंट होता है सराउंडिंग गैसेस का, तो यहाँ पर स्लैग है. तो स्लैग जो है वो सॉलिड कंटेंट है और वो एक तरीके से सेकेंड लेयर है प्रोटेक्शन का, आप कह सकते हो. ओके. सो फ्लक्स कोटिंग बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस प्रोटेक्टिव स्लैग. तो फ्लक्स के बनने के बाद जो प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड स्लैग, एंड कीप द मोल्टन मेटल सील्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन. सो जो हमारा मोल्टन मेटल होता है वो मैंने आपको बताया प्रोन होता है ऑक्सीडेशन के लिए. सो वी नीड टू सील दैट पार्ट, एंड दिस योर slag help us to do that thing. Okay. और जैसे मैंने आपको बताया कि मोल्टन स्लैग को का जो वेट है और डेंसिटी जो है वो कम होता है, तो ये फ्लोट करता है मोल्टन. दैट्स वाई ये ऊपर आपका इकट्ठा हो जाता है. राइट. एंड वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्लैग. स्लैग ऊपर एक तरीके से आप देखिए अगर प्रीवियस स्लाइड में, तो स्लैग गेट अवेयर्ड ओवर द टॉप सरफेस, and because of this what happens, the heat transfer from this molten pool, or you can say this weld region, will take place in a slow rate. तो हीट ट्रांसफर स्लो रेट से होगा, सॉलिडिफिकेशन स्लो रेट से होगा, जिससे कि हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी मिलेंगी हमारे सरफेस से, वेल्ड सरफेस का. सो दिस इज ऑल्सो ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग. राइट. ये भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. सो स्लोज डाउन द कूलिंग रेट एंड प्रोड्यूसेस मोर डक्टाइल एंड वेल डिपॉजिट. मोर डक्टाइल वेल डिपॉजिट. राइट. और फ्लक्स में अलग अलग कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं. इन फ्लक्स वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सो वी नीड टू नो दैट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस विच काइंड ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, विच काइंड ऑफ एलिमेंट इज रिक्वायर्ड. सो जो डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज होते हैं जो आपके फ्लक्स में, जनरली वो ग्रेफाइट एल्यूमिना होते हैं, और भी कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं. मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर दो ऐड करे हैं. स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड में आपका आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम सिलिकेट होता है. एलॉइंग एलिमेंट जो कि प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए यूज होते हैं वो क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट और वेनेडियम हो सकते हैं. गैस फॉर्मिंग कंपाउंड जो ऐसे कंपाउंड यूज करते हैं जो कि बर्न होने के बाद काफी ज्यादा मात्रा में नॉन रिएक्टिव गैसेस प्रोड्यूस करें जो कि मोल्टन मेटल से रिएक्ट ना करें और एक सील्डिंग प्रोवाइड करें. तो सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट इस पर्पज के लिए यूज होता है इन फ्लक्सेस. ओके. Now again, the purpose of flux to induce easier arc starting, arc stability के लिए भी यहाँ पर काम में आएगा ये. improve weld appearance and penetration, reduce spatter also. ठीक है. तो ये सारी चीजें भी एक तरीके से फ्लक्स कंपोजिशन का पर्पज होता है. ठीक है. सो एक तरीके से अगर कोई शील्डिंग है तो स्पेटरिंग भी आपका रुकेगा. और उसके बाद अगर बाहर से इंट्रैपमेंट नहीं हो रहा है गैसेस का, कोई बाहर से जो गैसेज है सराउंडिंग गैसेज उनका कोई एक तरीके से डिस्टर्बेंस अगर अकर नहीं हो रहा है इन योर ऑपरेशन, देन ऑब्वियसली योर बेड अपीयरेंस एंड थिंग विल बी गुड because of less defect, right? And this also provide arc stability. राइट. जैसे अगर कोटिंग नहीं होगी, जैसे हमने पढ़ा था जब हम फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग पढ़ रहे थे, तो अगर हमारे पास अ, अगर अगर हम नेकेड इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, तो इन केस हम नेकेड इलेक्ट्रोड, हमारे पास जो आर्क स्टेबिलिटी थी वो प्रॉपर नहीं थी.
हमने देखा था वेल्डिंग फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग में। बट व्हेन वी यूज अ सील्डेड आर्क, व्हेन वी यूज अ कोटेड आर्क, कोटेड इलेक्ट्रोड, तो उस केस में क्या होता है, कोटेड इलेक्ट्रोड होने की वजह से जो स्पैटरिंग है वो कम हो जाता है और आपका जो आर्क है उस वो स्टेबल होता है। So this is also a reason behind this. This is also a positive reason behind the usage of flux. Now, what are the advantages of this SMLW? So अभी मैंने काफी चीजें बताई, वही आपके एडवांटेज में ही मे भी काउंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर एडवांटेज इसका ये है कि दिस इज वेरी सिंपल। This your SMAW is a very simple process, portable and inexpensive. That's why you can see this kind of welding apparatus in every workshop, in every maintenance shop. You can see that both filler metal, arc, and molten metal shielding are provided by the electrode only. We don't need to have a separate filler rod. आपका ये electrode है यहाँ पर, जैसे अगर आप देखो तो so if you say this is your electrode, ओके, सो इसी के सराउंडिंग में यहाँ पर कोटिंग भी हो जाती है। इसी के सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, कोटिंग भी करते हैं। ओके, सो अंदर जो है आपका मेटल है, बेस मेटल का ही कंपोनेंट है वो। ओके, और बाहर आपका फ्लक्स है। तो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, फिर फिलर मटेरियल अलग से यूज कर रहे हो, फिर आपका फ्लक्स अलग से यूज कर रहे हो। ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल कंपोनेंट। तो ये एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है वेल्डिंग में, वेल्डिंग ऑपरेशन। ओके, and because of this simple equipment and simple arrangement, it can be used for very limited access area also. So क्योंकि इसका simple arrangement है, केवल एक ही stick हमको use करना है for welding operation, for shielding purpose, so it can be used for very limited access also, narrow access also, low initial cost, we know that. And it can be used for all position capabilities. We have seen that different kind of welding positions, right, horizontal, vertical, overhead, so it can be used almost for all purposes. Okay, and most commonly used for metals and alloys. So these are the advantages of this SMAW. Now there are in every process we know that along with advantage there might be some disadvantage also. So now we will see what are some limitations of this SMAW process. So first limitations, if you compare this thing with your GMAW or other welding operations, then you will find out that this process is having a low consumable efficiency. So ये एक, अगर बाकी से आप कंपेयर करेंगे तो ये एक तरीके से इसमें डिसएडवांटेज आता है। उसके बाद दिस इज बेसिकली ये जो आप देखोगे स्टिक वेल्डिंग, तो ये बेसिकली थिक सीट के लिए ज़्यादा सुटेबल है। अगर आपके पास 2 mm 3 mm के का अगर सीट आ गया, थिन सीट आ गया, तो आपको वेल्डिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो वेल्ड बेड है या फिर जो वेल्ड सरफेस है उसी की थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो प्रॉपर सुटेबल नहीं होगा थिन सीट के लिए। तो दिस इज बेसिकली यूज फॉर थिक शीट। ठीक है, तो ये भी चीज़ है कि वेरी थिन मटेरियल को ये यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, और अगर आपने वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा हो, अगर आपने वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा हो एसएमएडब्ल्यू, दिस इज अ मैनुअल ऑपरेशन, तो बार बार आपको आर्क प्रोड्यूस करने के लिए कुछ टाइम के बाद आपको जो आपका ये इलेक्ट्रोड है, जो आपका ये इलेक्ट्रोड है, और जैसे दिस इज योर इलेक्ट्रोड एंड वी यूज अ होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर हियर, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये आपका लेफ्ट से दिस इज योर वर्क पीस। सो अगर हम वेल्डिंग आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद बार बार आपको इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे वर्कपीस पे टच करा के इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ दिस SMAW. Or since SMAW is a manual operation, so because of this you need to have good skill. You need, if you want to perform this welding operation, then you must have a good you can say good skill. uh, After that only you will be able to perform sound welding operation. ठीक है, डिपोजिशन रेट, ये भी आपने मैंने जैसे बताया कि ये लोअर होता है एज कम्पेयर टू मेटल आर्क वेल्डिंग, राइट। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे आप देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम करंट दैट कैन बी यूज्ड इज लिमिटेड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कोर वायर।
सो देर इज अ लिमिट फॉर मैक्सिमम करंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड और फ्लक्स ये दोनों एक ही साथ यूज हो रहे हैं। सॉरी, जो आपका फिलर मटेरियल है, जो रॉड है वो, और आपका जो फ्लक्स है वो एक ही साथ यूज हो रहा है। सो इनसाइड यू हैव योर metallic rod, and outside you have fluxes. Okay, so if you raise your temperature, if you sorry, if you raise current, if you raise current by a significant amount, and then what will happen, this temperature of this rod will increase, and there might be possibility of fusion of this fluxes as well as of this your rod. And before welding only, if the fusion starts, अगर वेल्ड होने के पहले ही आपका ये जो कोटिंग है इसका अगर फ्यूजन स्टार्ट होने लग रहा है, तो आपका जो स्लैग फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। ठीक है, और वेल्डिंग इस हिसाब से सही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एक लिमिट है कि भाई एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर लिमिट के ज़्यादा अगर आप करंट इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे कोटिंग भी है आपके रॉड के ऊपर से। सो वी हैव अ लिमिट, ओवर दैट लिमिट वी कांट गो। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो कोटिंग है वो डैमेज हो जाएगा पहले ही, वेल्डिंग के पहले ही। सो हम वेल्डिंग ऑपरेशन अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेसिव करंट में ओवर ईट द इलेक्ट्रोड ब्रेकिंग डाउन द फ्लक्स कोटिंग। और इसके अगर ऐसा होता है तो इसका फाइनल आउटकम क्या होगा? इट विल डिटेरियोरेट योर आर्क बिहेवियर एंड शील्डिंग। सो दिस विल डिटेरियोरेट योर बिहेवियर, आर्क बिहेवियर एंड शील्डिंग। तो इसीलिए जो करंट है एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ SMAW। Okay, now what are the different applications of this shielded metal arc welding? So basically ये हर metal और alloys के लिए use होता है, mostly के लिए use होता है, and these are the common uses: shipbuilding, pipe joining, your simple automotive aircraft industry, and air receiver tank boiler, प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन, और अब बाकी आप डेली यूजेज में देखते ही हो, आपके घरों के गेट बनाने के लिए, या फिर हाउस होल्डिंग के डिफरेंट मेटेलिक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे गेट, आपके गेट, जैसे आपको घरों के सामने जो गेट वगैरह बनते हैं वहां पे भी आप SMAW से ही वेल्डिंग करते हैं। तो आपने ये चीज देखा होगा कहीं ना कहीं, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट योर SMAW। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, या फिर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी जिसको बोला जाता है। सो ये भी इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। सो अभी क्या है, हम लोग आर्क वेल्डिंग से ही स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वी विल cover all the different kind of welding processes which comes into this arc welding category। इसके बाद आर्क वेल्डिंग के बाद हम आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे गैस वेल्डिंग। ओके, सो इन दिस वे वी विल मूव। ओके, सो what is this gas tungsten arc welding? So gas tungsten arc welding is a non consumable arc welding, right? तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल नहीं होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है इसमें। सो पहले इसका हेलियाक भी नाम था। हेलियाक नाम होने का मतलब वजह ये था कि इसमें पहले सॉरी इसमें हीलियम गैस यूज किया जाता है। ठीक है, तो हीलियम गैस इसमें एज अ सीलिंग गैस यूज होने की वजह से इसको हेलियाक भी बोला जाता था पहले। ओके, helium sealing gas use होता था, that's why. So heat for fusion is generated from an arc between your non-consumable tungsten electrode and the base metal। तो जैसे देखिए प्रोसेस जो है आर्क वेल्डिंग में हीट प्रोड्यूस करने का, वो हर वेल्डिंग ऑपरेशन में सेम ही रहेगा। So because of arc only, temperature will increase, and if your electrode is consumable, then that electrode will melt down. If you are using different kind of filler rod, then that filler rod will melt down because of this high temperature। ठीक है, and inert gas is used as a shielding medium for the arc and the molten wet food। तो अगेन हमें पता है कि भाई जो वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास सील्डिंग होना काफी जरूरी है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, एंड एट दैट टेम्परेचर आपका जो मेटल है वो ऑक्साइड लेयर ना बनाए। बिकॉज ऑफ दैट, फॉर दैट ओनली वी यूज इनर्ट गैसेज इन केस ऑफ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है,
सो आपका जो रोल क्या होता है, ये सील्डिंग गैस का रोल क्या होता है? तो बेसिकली सील्डिंग गैस प्रोटेक्ट्स योर molten pool from contamination. It also protects your electrode also at prevailing high temperature, कि उस समय इलेक्ट्रॉड भी एक तरीके से जो आपके सराउंडिंग में गैस है उससे रिएक्ट हो सकता है, तो उनको भी बचा, उसको भी एक तरीके से सेफ गार्ड करने का काम आपका ये जो सील्डिंग गैस है वो करता है। ओके, so tungsten gas readily oxidize if it comes in contact with oxygen। तो ये भी एक तरीके से एक पॉइंट है कि भाई जो टंगस्टन है वो इतने हाई टेम्परेचर पे जब अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें भी हमारे पास इनर्ट गैसेस का होना काफी जरूरी है। सो आर्गन और हीलियम इज यूज फॉर सील्डिंग इन GTAW, अलग अलग ऑपरेशन के लिए। अब ये आर्गन और हीलियम, ये भी काफी अगर डिटेल स्टडी आप करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट the behavior of this sealing gas is also different for different material। so हम अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग सील्डिंग गैसेस भी यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो प्लाज्मा फॉर्मेशन होता है, जो टेम्परेचर फॉर्मेशन होता है, या फिर जो रिएक्टिवनेस होता है, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम शॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सा सील्डिंग गैस कौन से मटेरियल के लिए यूज करना है। ओके, नाउ द इक्विपमेंट पार्ट ऑफ योर TIG वेल्डिंग सेटअप। तो TIG वेल्डिंग सेटअप में थोड़ा सा यहाँ पर अरेंजमेंट चेंज हो जाता है इफ यू कंपेयर दिस थिंग विद योर SMA। तो यहाँ पर एक तो पहले आपके पास ये आपका एक तरीके से वेल्डिंग टॉर्च कहो इसको, और इसके बीच में आपका यहाँ पर टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा। उसके बाद ये आपका होल पोर्शन अगर आप बोलोगे तो इसको वेल्डिंग टॉर्च बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका वर्क पीस है, एंड इन बिटवीन यहाँ पे फिलर रॉड भी होगा जो यहाँ पर अभी आपको रिप्रेजेंट नहीं करा गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो। सो दिस इज योर एंड दिस इज योर कॉन्टेक्ट ट्यूब। कॉन्टेक्ट ट्यूब क्या होता है मैं बताता हूँ। तो कॉन्टेक्ट ट्यूब क्या होता है, जो पावर सप्लाई होती है, वी नो दैट द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन योर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। सो इन केस ऑफ योर TIG welding, we connect this power supply with this conductive कॉन्टेक्ट ट्यूब। तो ये कॉन्टेक्ट ट्यूब आपका कंडक्टिव होता है और यहाँ से पावर सप्लाई कनेक्टेड होता है, और इनसाइड दिस कॉन्टेक्ट ट्यूब योर इलेक्ट्रोड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो योर इलेक्ट्रोड इज इनसाइड दिस कॉन्टेक्ट ट्यूब, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज योर फिलर वायर, एक्सटर्नली फिलर वायर, और यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस इज योर वेल्डिंग डायरेक्शन। बाकी चीजें तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर इक्विपमेंट है, ये पावर सोर्स हो गया, वेल्डिंग टॉर्च हो गया, टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गया, एंड गैस सप्लाई सिस्टम। गैस सप्लाई सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको वो सील्डिंग गैस जो इनर्ट गैस है यहाँ पे, उसका एक यहाँ पर सिलेंडर होता है जिसमें वो स्टोर्ड होते हैं, और ड्यूरिंग वेल्डिंग वी यूज दैट सिलेंडर फॉर सील्डिंग। नाउ द प्रिंसिपल ऑपरेशन। तो प्रिंसिपल देखिए, कोई भी वेल्डिंग आप जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज दैट वेल्डिंग ऑपरेशन, what is the setup, then we will see the principle of that welding operation। तो यही एक सीक्वेंस होता है किसी भी नए प्रोसेस को पढ़ने का। सो जिस तरह हमने SMA में प्रिंसिपल देखा था, इन द सेम वे look at the principle of tungsten TIG process simply। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इसमें यहाँ पर वेल्डिंग करंट, जैसे अगर सेटअप की अगर आप बात करो यहाँ पे, तो वेल्डिंग स्टार्ट करने के पहले हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, और आग प्रोड्यूस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वे टू प्रोड्यूस आग, एंड इन प्रिंसिपल ओनली वी स्टडी अबाउट द आग जनरेशन, कि आग कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। सो देयर आर टू वे टू जनरेट योर आग। ओके, सो फर्स्ट वे, द फर्स्ट मेथड जिसमें आपको आग जो आपका इलेक्ट्रोड है उसको जस्ट मेटल पीस पे जस्ट टच करा दीजिए। ओके, and just after that move that thing a little bit, and after that your arc will be produced। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है। Arc is initially stuck on the metal piece or a tungsten piece and then broken by increasing the arc length। So ये कैसे होता है? This procedure repeated twice or thrice to warm up the electrode। The arc is then struck between pre-cleaned job to be welded। So पहले क्या होता है कि इन द फर्स्ट मेथड, जो पहला आपका मेथड है, इसमें टच कराते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोड है उसको आप मेटल पे टच कराओगे, फिर स्टक ऑन द मेटल पीस और अ टंगस्टन पीस,
and then broke down by increasing the arc length. ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से वेल्डिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक तरीके से वार्म अप ऑपरेशन है ये ऑफ द इलेक्ट्रोड. एंड आफ्टर डूइंग दिस वार्म अप ऑपरेशन, देन फाइनली दो तीन बार ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद वी विल डू वेल्डिंग ऑपरेशन. ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा अगर डायरेक्टली अगर हम जैसे मान लीजिए डायरेक्टली वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते समय कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. दिस माइट कॉज ब्रेकेज ऑफ योर इलेक्ट्रोड टेप, जॉब कंटेमिनेशन एंड ऑल. सो इसकी वजह से हम ये जो प्रोसेस है इसको हम फॉलो करते हैं. ठीक है, ये चीज यहाँ पे सेकंड लाइन में भी लिखी हुई है. द आर्क इज स्टक ईदर बाय टचिंग द इलेक्ट्रोड with the scarf metal and tungsten piece or using a high frequency. तो पहले हमने अभी पहला वाला पार्ट डिस्कस कर रहा है. तो पहले वाले पार्ट में हमने जैसे आपको बताया कि कोई भी स्क्रैप मेटल ले लो या फिर कोई टंगस्टन पीस हो गया, आपके जो वेल्ड सरफेस है जहाँ पे वेल्डिंग करना है ना, उस पे नहीं टच कराते हैं, याद रखिएगा, उस पे नहीं टच कराते हैं. कोई स्क्रैप मटेरियल हो गया, स्क्रैप मटेरियल हो गया जो कि अलग से है, या फिर कोई टंगस्टन पीस है, वहां पे टच करा के हम पहले दो तीन बार एक तरीके से वार्म अप करते हैं, वार्म करते हैं आपके इलेक्ट्रोड को. Now in second method what we do, in second method we use high frequency circuit. ओके, तो सेकंड जो आपका मेथड है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी सेटअप सर्किट यूज करते हैं. और इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई स्कार्प मटेरियल मेटल या फिर टंगस्टन पीस की जरूरत नहीं होती है. इसमें हम डायरेक्टली अपना वर्क पीस है उसको यूज करते हैं, एंड दिस इज योर वर्क पीस. And when the electrode tip reaches within 2 or 3 mm from the job, from the workpiece, a spark jumps across the air gap. ठीक है, हमें पता है भाई, एक पर्टिकुलर गैप जब मेंटेन हो जाता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉड है वो जम कर जाता है. ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी. ओके, तो जब वो जो डिस्टेंस है मोर और लेस 3 or 2 mm तक होता है, तो एट दैट टाइम स्पार्क जम्प्स अक्रॉस द एयर गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड गैप, एंड दिस एयर पाथ गेट आयोनाइज्ड बिकॉज ऑफ दैट, और आर्क आपका स्टेब्लिश हो जाता है. तो दो तरीके हैं हमारे पास. पहला तरीका जिसमें आपको टच कराना है, याद रखना है, सिंपल सा दिमाग में ये रखना है, इन फर्स्ट वे वी जस्ट टच any scarp material or any tungsten piece before performing welding operation. ठीक है, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो थोड़ा सा हीट अप हो जाए, राइट. In second way what we do, in second way we use high frequency circuit units, and in this case we don't need any kind of scarp material or extra tungsten piece. ठीक है, तो these are the two methods to start arc in case of TIG welding. Now operating variables. What are the major operating variables in TIG welding? So welding current, obviously welding current से आपका डिपोजिशन रेट वगैरह सारा कंट्रोल होता है. ओके, और दूसरा आपका आर्क वोल्टेज, और या फिर आर्क लेंथ, ऑप्टिमम आर्क लेंथ शुड बी देयर. वेल्डिंग स्पीड से कितना हीट इनपुट होता है ये भी डिपेंड करता है. सील्डिंग गैस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्लाज्मा जनरेशन एंड ऑल. सो दीज आर द मेजर ऑपरेटिंग ऑफ वेरिएबल्स इन केस ऑफ टीआईजी. ठीक है, तो इसमें से कुछ मेजर जो ऑपरेटिंग वेरिएबल्स है उनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उनका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे वेल्डिंग ऑपरेशंस में. सो इफ यू टॉक अबाउट द वेल्डिंग करंट, so in welding current we know that in case of DCEN, generally we use DCEN in case of TIG welding. So DCEN, what do you mean by DCEN? So if you remember, so what is DCEN? So we have seen this part in our previous lectures, that if this is your workpiece and this is your electrode. Okay. So if the polarity of your electrode is negative and the polarity of your workpiece is positive, then obviously this is DC supply. Then we call this DCEN kind of arrangement. And in case of DCEN, what happens? More or less 70% heat generated towards your workpiece, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करेंगे. Okay, so more heat will be generated toward workpiece, ECN, and less heat will be generated toward electrode, because the electrode is non-consumable. So this is the that's why this kind of arrangement is used here. Okay, and for deep penetration, generally we use helium as a inert gas. Okay, but for welding of aluminium, we use AC.
So ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया है कि why we prefer AC for in case of aluminum welding, and I'm going to repeat that thing again. So what happens in case of aluminum? In case of aluminum, what happens? It reacts. It is very reactive metal, and it formulates somehow. Although we are using shielding gases or inert gases and all, but it uh, तो यहाँ पर सर मान लीजिए ये एल्यूमिनियम की सरफेस है. सो ये इतना कुछ होने के बावजूद जो एल्यूमिनियम है वो सम हाउ एल्यूमिना जो ऑक्साइड लेयर है वो फॉर्मुलेट कर लेता है अपने सरफेस पे. एंड व्हाट हैपेंस सिंपली अगर यू सी एग्जैक्ट नंबर, अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात करोगे तो एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा. देखिए एग्जैक्ट नंबर में मत जाइएगा, मैं आइडिया बता रहा हूँ बस. और जो L2O3 जो ऑक्साइड होता है इसका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो ये लगभग 1500 ऑलमोस्ट इसके आसपास होता है, 2500 2400 डिग्री सेल्सियस. सो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के बीच में. सो दिस इफ somehow if anyhow alumina start generating over the surface, then it will cause a major welding defect over the aluminum surface. ओके, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो सकती है. सो वी नीड टू प्रिवेंट दिस थिंग, and to prevent this thing we use somehow we need to remove this formulation of Al2O3. So उसका बेस्ट पे क्या होता है, just use AC welding. So in case of AC welding what happens, the polarity changes, the polarity changes on a continuous manner. So if for some part if your electrode is negative and workpiece is positive, let's say some formulation यहाँ पर हो गया थोड़ा सा, ठीक है, and for the next part your electrode will be positive and your workpiece will be negative. So at this time what will happen, your the movement of electrode will get changed. तो आपका इलेक्ट्रॉड जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगा. उल्टी डायरेक्शन मतलब अगर पहले वाले को रेफरेंस लेते हो तो सेकंड वे में क्या होगा, सेकंड तरीके में आपका इलेक्ट्रॉन है वो वर्कपीस से इलेक्ट्रोड की ओर भागना शुरू कर देगा. सो इन दिस वे वो क्या होगा कि अगर आपके यहाँ पे अगर कोई लेयर फॉर्मुलेट हो भी गई है, लेट्स से देयर इज अ स्मॉल थिन लेयर व्हिच वाज फॉर्मुलेटेड ऑफ एल्यूमिना, दिस विल ब्रेक डाउन, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इसी प्रोसेस को आप यहाँ पर कैथोडिक क्लीनिंग बोलते हो. ठीक है, सो दिस इज योर कैथोडिक क्लीनिंग, एंड इन दिस वे योर रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड लेयर जो है वो रिमूव हो जाता है. तो एसी इसीलिए प्रेफर होता है आपके या फिर एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए, या फिर कोई ऐसा मटेरियल हो जो कि ऑक्साइड काफी इजीली फॉर्म कर लेता है. तो टू ब्रेक डाउन ऑक्साइड लेयर बेसिकली वी यूज एसी पावर सोर्स इन टिक वेल्डिंग. राइट, ओके. सो अगेन यहाँ पर विद एसी टू हैव स्पटरिंग इफेक्ट, ऑर्गन गैस का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो स्पटरिंग जो है वो हीलियम के प्रेजेंस में नहीं होता. तो ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है. ऑल्दो ये पूछा नहीं जाएगा बट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो. सो इन केस ऑफ मैनुअल GTAW ऑलवेज ऑर्गन यूज होता है. तो कि GTAW भी दो तरीके से यूज हो सकते हैं. एक तो इसका मैनुअल सेटअप भी होता है और आपका सॉरी ऑटोमेटिक सेटअप भी होता है. तो इन मैनुअल सेटअप भी यूज ऑर्गन. Okay, so now if we talk about polarity, so DCN basically mostly use होता है in case of your TIG welding. Mostly we use DCN, and in case of DCN 70% of heat is generated at the plate in OD region जो आपका workpiece है, 30% electrode के portion है for a given current. Okay, और यहाँ पे because the more heat is generated toward your workpiece, so deep penetration is possible. Right. DCEP is generally limited to welding sheet metals only. बहुत कम यूज होता है इनके सब TIG, और यूज होता है तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि sheet metals यूज होता है. With DCEP the cathodic cleaning action take place at the surface of workpiece. So ऑक्साइड लेयर का फॉर्मुलेशन नहीं होगा आपके वर्कपीस का, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले रीजन आपको बताया. ओके, सॉरी. So this is all about the polarity changes. Now there are two types of categories in TIG welding. The first one is your manual, and second one is fully mechanized TIG welding. ठीक है.
So in manual, what happens? Manually, we handle this your movement of your electrode torch as well as feeder rod. And in case of automatic or a mechanized GTAW, what we do, we use a servo mechanism to feed this pool of consumable feed wire, and we also use a different mechanism to move our welding torch. And this is, let's say this is your welding direction, so automatically this your welding arrangement will move, and automatically this feeding will take place. Okay, by using servo mechanism we do that. Now what are the advantages of this gas tungsten arc welding? There are so many advantages. बहुत ही ज़्यादा TIG welding यूज होता है. TIG welding आपके रेल इंडस्ट्री में यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है. मेजर एडवांटेज इसका क्या है कि काफ़ी थिन मटेरियल को भी वेल्ड करने के काम आ सकता है, जो कि मेजर डिसएडवांटेज था इन केस ऑफ SMAW. सो दिस कैन बी यूज फॉर अ वेरी थिन मटेरियल एज वेल एज. And pinpoint control is there. This process can weld in all positions. No, no spark or spatter is there. No flux or slack formulation is there. So in case of slug, some in SMAW, there might be possibility of slug intrusion. तो slug है वो एक कभी कभी क्या होता है कि जो slug somehow get there over your molten pool, और molten pool के अंदर entrapment हो जाता है slag का, तो एक तरीके से वो डिफेक्ट होता है. तो अब यहाँ पे तो हम फ्लक्स यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो स्लग का तो कोई होना ही संभव नहीं है. सो slag entrapment भी होना इम्पॉसिबल है. So this is also advantage of this. No smoke or fumes in case of TIG welding. Weld more metal and metal alloys than any other process. If you see the capabilities of other welding processes, then you will find out that mostly we use GTAW for almost all alloys and metals. So all, सब तो नहीं कह सकते, but mostly. फ्लक्स नहीं यूज होता है, मैंने आपको बताया, तो फ्लक्स इंट्रैपमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो गया. हाई क्वालिटी प्रिसीजन वेल्डिंग ऑपरेशन सुटेबल फॉर थिन मटेरियल एंड पिन कंट्रोल इज पॉसिबल हियर. प्रोसेस कैन बी वेल्डेड फॉर ऑल पोजीशन. सो ऑलमोस्ट सारे एडवांटेज हमने कवर कर लिए. यस, देयर आर लिटिल लिमिटेशंस ऑफ दिस प्रोसेस आल्सो, वो भी देख लेते हैं. सो इसमें क्या है कि लोअर फिलर मेटल डिपोजिशन रेट, फिलर रॉड यूज होता है और उसका डिपोजिशन रेट कम होता है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है. तो DCEN ज्यादातर यूज होता है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिपोजिशन रेट तो कम होगा ही. सो दिस इज अ लिमिटेशन, राइट. चांसेस ऑफ टंगस्टन इंक्लूजन इज देयर. सो कंटिन्यूसली अगर इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं तो टंगस्टन इंक्लूजन हो सकता है वर्कपीस में. दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम इन दिस वेल्डिंग ऑपरेशन. And if you talk about the manual TIG process, then you need to have good hand-eye coordination. ब्राइटर यूवी रेज निकलते हैं यहाँ से. स्लोअर ट्रैवल स्पीड देन द अदर प्रोसेस. इक्विपमेंट आर कॉस्टलियर, क्योंकि TIG वेल्डिंग आप हर नॉर्मल वर्कशॉप पे तो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है. तो हाई, अगर SMAW से अगर कंपेयर करो तो ऑब्वियसली दिस इज कॉस्टली. So these are certain limitations of this TIG welding. So आज के लेक्चर में हमने देखा कि भाई SMAW क्या होता है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है, और आपका टंगस्टन गैस क्या होता है. एप्लीकेशन देखे, सॉरी एप्लीकेशन देखे SMAW के, फिर हमने लिमिटेशंस देखे और एडवांटेजेस देखे SMAW और TIG प्रोसेस के. नाउ दीज आर सम मेजर एप्लीकेशंस ऑफ योर TIG welding. So especially useful for welding of reactive and refractory metal, since we use non-reactive gases which are inert gases. तो ये रिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्टरी और रिएक्टिव मेटल के लिए सुटेबल होता है. ओके. It is highly used in carbon and alloy steel, stainless steel, heat resisting alloys, aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, nickel alloys, almost all other different kind of alloys also used for welding operation. ठीक है. और दूसरी चीज, in TIG not only we can weld the thin component of thill sheets, we can also use TIG for joining thick portion also. So thick portion up to 12 mm को भी हम यहाँ पर join कर सकते हैं by using manual TIG weld. Okay, so ये सब कुछ applications हो गए. For thick section, organ helium mixture और pure helium can be used, क्योंकि इसमें जो penetration होता है वो ज़्यादा observe किया गया है. If you use argon helium mixture or pure helium as a inert gas, then we achieve more penetration. Okay.
Videsi generally argon shielding gas is used for welding aluminum because it provides better arc starting, better cleaning action, and superior weld quality. So I said this earlier that the behavior of this shielding gases are different for different materials. So एंड एक्सपेंड कुछ होता है जैसे अलग गैस की एफिनिटी होती है अलग गैसों के साथ, तो हमें वो ध्यान में रखना होता है कि विच इनर्ट गैस इज सुटेबल फॉर विच मटेरियल. So here for your AC, in case of AC, we use what we use argon shielding gas, aluminium के लिए, right? Okay, so this thing is done. अदर इसका एप्लीकेशन क्या है? यूज्ड इन ऑटोमेटिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेड इंडस्ट्रीज. इट इज आल्सो यूज्ड इन रॉकेट मोटर, चैम्बर फैब्रिकेशन एंड लॉन्च व्हीकल्स. सो बहुत ही ज़्यादा कुछ हमने देख लिया टीआईजी के लिए. तो हमको मेजर पॉइंट जो याद रखना है टीआईजी के लिए वो ये है कि जो आपका टीआईजी ऑपरेशन है, जो आपका टीआईजी है, वो थिन मेटल के लिए भी इजीली यूज हो सकता है. और एक चीज और इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है कि इन केस ऑफ एल्यूमिनियम वेल्डिंग, केस ऑफ ज्वाइनिंग एल्यूमिनियम एलॉयज और एल्यूमिनियम मटेरियल, वी यूज एसी सप्लाई. तो ये चीज आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच काइंड ऑफ सप्लाई डू वी यूज फॉर ज्वाइनिंग एल्यूमिनियम एलॉयज और एल्यूमिनियम मटेरियल, राइट? सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं. एंड इन टुमारोज लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, लेट्स से नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट your gas metal arc welding or MIG welding, and other kind of welding will also cover in next lecture. So if you're liking this kind of like welding series and lectures, so you can follow this and subscribe this channel also. So thank you all for attending this lecture.